Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. On your video, all of you. On your video, fast. Bindu, Betati Mehti, Manisha, Minakshi, all this one are absent. Okay, Pintu Mehti, absent. Rana Santra, absent. Okay, Srishti Ghorai, absent. Subhashri Manna, absent. Okay. Bindu, absent. On your video, all of you. Okay, so today our topic is care of terminally ill patient. Okay, and care of terminally ill patient में हम we are studying ना concept of loss, grief and grieving process, sign of clinical death, care of dying patient, spatial contrition and advanced directive, anesthesia, will dying declarations and organ donation and transplantation, medico-legal issue, care of dead body and equipments, procedure and care of unit, autopsy and invalid. Okay, so first of all, we are started a loss, concept of loss, care of terminally ill patient under a concept of loss. Okay, so loss means loss is an actual or potential situation in which something that is valued in change are no longer available. Okay, loss means सबको पता होगा ना, loss है ना, means किसी चीज का खो जाना. ठीक है, मीन्स हमारे पास जो सिचुएशन हमको चाहिए वो ना होके कुछ और होना, सडनली हमारे सिचुएशंस पे चेंजेस आना. ठीक है, पीपल कैन एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ बॉडी इमेजेस, है ना, मीन्स सिग्निफिकेंट अदर्स एंड सेंस ऑफ वेलबींग. समटाइम्स जॉब लॉस हो सकता है ना, समटाइम्स एनी के पर्सनली लव वंस लॉस्ट हो जाते हैं. ठीक है, एनी इलनेस मींस एनी हेल्थ लॉस होता है. ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन आफ्टर प्रोसीजर लूजेस. ओके, एंड लॉस इज एन इनवर्टिबल पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, मींस हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं. एवरी पर्सन एक्सपीरियंस द लॉसेस. ओके, सो दिस इज अ लॉस एंड टाइप ऑफ लॉसेस. सो नेसेसरी लॉस, maturational loss, unwanted loss and unexpected loss and situation loss. Okay, and actual loss and perverse loss. Okay, and sudden versus predictable loss. Okay, so first of all we are studying necessary loss. Okay, which is a part of life. They learn to expect that most necessary loses and eventually replaced by something different or better. Okay, means sometimes our life are important na, some losses for our benefit. This is a necessary loss. Okay, something different or better for. Okay, and maturational loss means is a form of necessary losses and included all normally expected life changes across the life span. And mother feels loss when her child leaves home for the first day of school. Okay, so that is a maturational loss. Means जैसे हम क्या होते हैं, develop होता है our body, our mind development होता है ना, that time we are accepted, normally accepted losses. Okay, so this is a maturational loss. And next one is unwanted or unexpected loss. Unwanted or unexpected means जो हमने सोचा नहीं है. ठीक है, हमने expect नहीं किया है. ठीक है, some losses seem unnecessary and are not part of expected. Means suddenly किसी की death होना. Okay, so this is a unwanted or unexpected loss. And situational loss. Situational loss means a person in an automobile accident sustain an injury with physical changes that make it possible to return to work or school, leading to loss of function, income, life goals and self-esteem. So this is a situational loss. Okay, means
अंडरस्टूड? हाँ, व्हाट इज मीन्स जो हम रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो लॉसेस होती हैं, ठीक है, हमारे हमने कुछ गोल्स बनाया और वो हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब हमने गोल्स बनाया कि वी आर स्टार्टिंग एंड 80% इज वी आर गेटिंग, बट our situation losses means we are different situation conducting and we are not attempt sometimes exam and we are not getting a 80% marks. Okay, so this is a situational loss. Okay, then an actual loss occur when a person can no longer feel, hear, see or know a person or object. Example included the loss of body parts, है ना? So this is a actual loss. Death of a family member, this is a actual loss. Actual loss means हम उस चीज को कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे, है ना? दिस इज अ एक्चुअल लॉस. ओके, अगर किसी का डेथ हो गया, अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट्स को कट कर दिया गया, ठीक है, सो दिस इज अ एक्चुअल पार्ट. एंड डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर एंड लॉस ऑफ अ जॉब मींस एक बार जो जॉब चला गया फिर हम उस जॉब पे वापस नहीं जा सकते. सो दिस इज अ एक्चुअल जॉब, एक्चुअल loss. Okay, lost valuable object included those that wear out or in place, stolen. Okay, disaster. Child give as the loss of a favorite toy is washed away in a flood. Okay, and next one is perceived loss means uniquely defined by the person experiencing the loss and it lays obvious to others people. For example, some people perceive rejection, है ना, जस्ट नॉर्मल, अभी बहुत नॉर्मल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिजेक्शन, है ना, एनी फ्रेंड टू बी अ लॉस, है ना, सम very close friend and childhood friend and suddenly one friend or accidental death, है ना. So this is a perceived loss. Okay, then sudden versus predictable loss means sudden or shocking losses due to event like crimes, accident, suicide can be traumatic. There is no way to prepare. They can challenge your sense or security and confidence in the predictability of life. Okay, so you may experience some symptoms such as sleep disturbance, nightmares, dressing, है ना, distressing, thought depressed, mood, social isolation or severe anxiety. So this is a sudden versus predictable loss means हम सोचते हैं, है ना, कि अगर हमने ऐसा किया है, हमने कोई क्राइम किया है, तो ऑल टाइम हम उस चीज को क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन हमारे माइंड में वो कंटिन्यू होते रहता है ना, थिंकिंग कंटिन्यू प्रोसेस होता है. तो दिस इज अ सडन versus predictable loss. Okay, and predictable losses like those ड्यू टू टर्मिनल इलनेस मीन्स हमको पता है कि हमको कोई डिजीज कंडीशन है, लाइक हमको कैंसर है, ठीक है, हमको पता है, तो हमको पता है कि वो टर्मिनली हम इल हैं और उस हमारे जो सम स्टेजेस में जो कैंसर होते हैं वो हम ट्रीट नहीं कर पाते, है ना, मतलब वो उसका एंड लाइफ एंड लास्ट ही होता है उसका ट्रीट, मतलब उसका जो क्या बोलना चाहिए, जो उसका रिजल्ट है एंड लास्ट उसका डेथ ही होता है, ठीक है. सो वो क्या हुआ, प्रिडिक्टेबल लॉस हुआ, जो हमको पता है, ठीक है. समटाइम्स अलाउ मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर द लॉस, है ना, कभी कभी हमको ये चीजें पता होती हैं कि हाँ ये होने वाला है, इससे जैसे कि किसी का बहुत लॉन्ग टाइम से किसी की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, कोई इल है, तो हमको पता होता है कि एंड लास्ट अब वो नहीं रहेगा, ठीक है. सो दिस इज अ प्रिडिक्टेबल लॉसेस. अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट इज लॉस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑन करो सभी अपना वीडियो. ओके, देन नेक्स्ट वन इज ग्रीफ. तो ग्रीफ इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस मींस लॉसेस तो समझ में आ गया, ठीक है, कि हाँ ये लॉस हुआ है. अब उस लॉसेस में जो हमको फीलिंग होती है ना, जो हम डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, उस टाइम को, उस हमारी मैच्योरिटी को हम फिर से क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है. सो वो जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो होता है क्या, ग्रीफ. Okay, and grief is a natural part of healing process, and grief is a strong, sometimes overwhelming emotion for people. ऑलरेडी मैंने बोला ना अभी आप लोगों को कि क्या होता है जब हम डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं. सो ये ग्रीफ क्या है, एक हीलिंग प्रोसेस है. ओके, एंड द रीजन ऑफ ग्रीफ ऑफ many such as the losses of loved ones and the losses of health are the letting go or long held dreams, है ना, मीन्स किसी चीज के लिए आप 2 years से प्रिपेयर हो रहे हैं एंड लास्ट मोमेंट आपने 3 एग्जाम्स पास आउट कर लिया एंड लास्ट वन ओनली 1 या 2 मार्क्स के लिए आप फेल हो गए. सो कितना एंजाइटी आएगा, कितना डिप्रेशन होगा, है ना. सो ग्रीफ
part of the healing process, and this is a very helpful process. Okay, so the reason for grief are many, such as the losses of loved ones, loss of health, or letting go, है ना, and the most difficult time in a personal life. Okay, so individual sometimes grief very क्या बोलना चाहिए, प्रोसेसिव प्रोसेस ना, मीन्स बहुत अच्छे से हीलिंग कर देता है, बट sometimes some persons not adjusting the grief process, and that time वो क्या करते हैं, कभी सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं. ठीक है, so individual experience of grief vary and are influenced by the nature of the loss and pattern of physical and emotional responses to bereavement many vary. ठीक है, सबको कुछ ना कुछ लॉसेस हुआ होगा, एवरी स्टूडेंट है ना, एवरीवन कुछ ना कुछ लाइफ में लॉस हुआ होगा. एक पेंसिल से ही आप लोगों को बहुत ज्यादा लगाव था और वो पेंसिल गुम हो जाती है तो हमको अच्छा नहीं लगता. ठीक है, सो सबके लाइफ में ये प्रोसेस होता है, लॉसेस एंड ग्रिफ का. ओके, and grief is an emotional response to a loss, okay, manifested in way unique and individual and based on personal experience. सबका अपना अपना personal experience होगा grief and loss का. Okay, and mourning means coping with grief involve a period of monitoring the outward social expression of grief and the behavior associated with loss, and most mourning ritual and culturally influenced learned behavior, है ना, means हम क्या करते हैं, अलग अलग situation में अलग अलग behavior रहता है. ठीक है, means sometimes किसी के लव वन, जैसे कि हमारे साइड पे जब किसी का डेथ होता है तो हम बिल्कुल शांत, मतलब विदाउट, जैसे ईस्ट साइड पे क्या होता है, बहुत बैंड के साथ में लेके जाते हैं, राइट, बट हमारे साइड पे क्या करते हैं, बिल्कुल शांत उसको लेके जाते हैं किसी की डेथ होती है तो. ठीक है, सो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सबके ग्रिफ का जो प्रोसेस होता है, हीलिंग प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, common different reaction to the death of loved ones. Bereavement is the most important. Bereavement means for our most important, na, because we are a nurse profession. So common depressed reaction to the death of a loved ones. Okay, bereavement and encompasses both grief and mourning, included the emotion response, outward behavior of a person expecting loss. Okay, so this is a bereavement and especially grief type. So normal grief. अदिति रॉय ज्वाइन योर पर्सन. काहे तुम लोग मेरा पर्सनल आईडी करते हो, पता नहीं है, इसमें आना है, इसको ज्वाइन करना है. ओके, सो टाइप. ओके, सो टाइप क्या है, नॉर्मल ग्रीफ एंड एंटिसिपेटरी ग्रीफ. ओके, नॉर्मल ग्रीफ एंड anticipatory grief and dysphantic grief and ambiguous grief, complicated grief, excited grief, delayed grief, masked grief, but most important for you, normal and anticipatory grief. Okay, normal grief means is a common universal reaction, है ना, means अगर कोई खत्म हो गया, किसी की डेथ हो गई तो क्राइम, this is a very normal healing process ना. बोलते हैं ना, रोने से अच्छा फील होता है, जब को कुछ दुख है, कुछ हर्ट हुआ है तो रो लो या किसी के पास बोल दो तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, राइट. सो दिस इज अ नॉर्मल ग्रिफ. ओके, दिस इज अ नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस, है ना. So this is a normal grief. Okay, uncomplicated grief is a common universal reaction characterized by complex emotional, cognitive and social physical behavior, spiritual responses to loss and death, है ना. मीन्स जब कुछ होता है तो हम क्या करते हैं लास्ट में, हे भगवान जी प्लीज सेव कर लो, बोलते हैं ना. तो ये क्या है, किसी भी कल्चर के लिए हो, किसी भी सिस्टम के लिए हो, क्या होता है, ये नॉर्मल ग्रिफ प्रोसेस है. देन एंटिसिपेटरी ग्रिफ. Anticipatory grief means person experience anticipatory grief, the unconscious process of disengaging to letting go before the actual loss of death occurs. Okay, especially in situation of prolonged unpredictable loss and when grief extended over a long period of time. So people absorb loss gradually and being to prepare for its eventually. Okay, and they experience intense response to grief, means shock, denial and transition. means अगर किसी को पता है कि मुझे कैंसर है और उससे हमको पता है predictable losses, है ना. predictable losses means हमको पता है कि इसका एंड लास्ट क्या होना है, लाइफ का, मतलब हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, लाइफ एंड ही मिलेगा. ठीक है, सो उस लॉसेस में जो हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है, वो हीलिंग प्रोसेस क्या होता है, हम सम टाइम शॉक होते हैं, सम टाइम डिनायल, मींस उस सिचुएशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना. समटाइम्स क्या होता है, किसी की डेथ होती है तो हम क्या करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, है ना.
ये हमारा रिस्पॉन्स होता है ना। सो ये भी, ये जो हमारा रिस्पॉन्स है ये भी एक क्या है, हीलिंग प्रोसेस है, मीन्स ग्रिफ का एक पार्ट है। ओके, सो दिस इज अ एंटिसिपेटरी ग्रिफ। ओके, देन ये आप लोगों के लिए सिर्फ नेम आपका इंपॉर्टेंट है, डिसइंफेक्टरी गिफ्ट एंड एम्बिजियस गिफ्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड गिफ्ट। सो कॉम्प्लिकेटेड गिफ्ट क्या है, पर्सन हैज अ प्रोलॉन्ग्ड एंड सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट टाइम मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर अ लॉस, है ना। मींस अगर किसी का लॉस हुआ फिर क्या बोलते हैं कि हाँ वो अब अपनी नॉर्मल लाइफ में रिवर्स हो गया है। बट समटाइम्स सम पीपल आर नॉट रिकवर, है ना, वेरी लॉन्ग टाइम लेते हैं रिकवरी के लिए। ठीक है, सो वो क्या होगा जो हीलिंग प्रोसेस है, मींस वो कौन सा हीलिंग प्रोसेस होगा आपका, कॉम्प्लिकेटेड ग्रिफ। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसका जिसका सिंगल हुई ऑप्शन लगाऊंगी। ओके, बागनन हाँ let's talk now what is losses and what is grief. Up now, factor affecting death and grief. So whether the death is expected or unexpected. Okay, sometimes हमको पता है कि डेथ होने वाला है, sometimes हमको नहीं पता है कि डेथ होगा। ठीक है, so ये क्या है, एक फैक्टर है जो डेथ एंड ग्रिफ को अफेक्ट करता है। Then the personality of the bereaved, okay, and the religious believer एंड द एज ऑफ ब्रीविड, है ना। समटाइम्स क्या होता है, अगर कोई 19 ईयर की कोई ओल्ड एज मेन और वुमेन है, उनका डेथ होना, तो उसका जो ग्रिफ होगा, मतलब जो हीलिंग प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा एवरी पर्सन के लिए, है ना, उनसे रिलेटेड जो भी पर्सन होंगे उनके लिए। बट इफ एनी 4 ईयर और 5 ईयर और 10 ईयर चाइल्ड अ डेथ सडनली, है ना, सो वो ग्रिफ प्रोसेस उसके पेरेंट्स के लिए क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो दिस इज अ फैक्टर, okay, factor affecting death and grief. Then stages of grief reaction. Grief means healing process ना, so इसके क्या क्या stages हैं? First of all denial, then anger, then bargaining, then depression, then acceptance. Okay, so denial means first form via a rejection, any situation acceptance, है ना। It is a normal reaction to recognize otherwise emotions, and it is a defense mechanism that buffer an immediate shock. It is conscious or unconscious refusal accept fact ना, information or reality। समझ में आ रहा है ना, डिनाइल मींस एक्सेप्ट नहीं कर पाना। ठीक है, सो ये स्टेजेस हैं, ग्रीफ रिएक्शन की स्टेजेस हैं। फर्स्ट है डिनाइल, ओके, देन नेक्स्ट वन इज एंगर। एंगर मींस गुस्सा होना, है ना। समटाइम्स हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, विथ एंगर। अब मैंने बोला ना ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये जो इमोशन है, हमारा इमोशंस क्या है, बहुत ज्यादा अपसेट है, ठीक है। सो वो हमारा अंदर से क्या होता है, एंग्री फेस में आउटसाइड पे शो होता है, ठीक है। सो एंगर कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वे। पीपल डीलिंग विद इमोशनल अपसेट कैन बी एंग्री विद देमसेल्फ एंड और with others, especially those close to them. Okay, then bargaining are a third stage and involve the hope. means हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हो सकता है कि ठीक हो जाएंगे, हो सकता है वो वापस आ जाएंगे। होता है ना, कई बार बोलते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार और ऐसा अपना क्वेश्चन पेपर अपना आंसर से रीचेक करवाऊं, हो सकता है मेरा नंबर्स 1-2 नंबर मेरा और इंक्रीज हो जाए, है ना। सो दिस इज अ बार्गेनिंग, मीन्स हम अपने आप को ही क्या करते हैं उस चीज में, अपने आप से ही हम उसमें अंडरस्टैंडिंग लाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ थर्ड स्टेज ऑफ इन्वॉल्व द होप दैट द इंडिविजुअल कैन समहाउ अंडू avoid a causes of grief. Okay, then depression, है ना, मीन्स कंप्लीटली हमको समझ में आ गया कि हमारे पास कोई बार्गेनिंग का कोई चांस नहीं है। सो हम उस चीज को एक्सेप्ट करने से पहले क्या होता है, डिप्रेशन पे जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज, मीन्स डिप्रेशन आ रहा फोर्थ स्टेज ना। सो दिस स्टेज द ग्रीविंग पर्सन बीइंग टू अंडरस्टैंड द सर्टेनिटी ऑफ डेथ, है ना, मीन्स नेचुरल टू फील सैडनेस, रिग्रेट, फियर, sometimes crying, है ना। So this is a depression phase, and then last one is acceptance. Okay, grief healing process is last one, 5 stages. Acceptance in this last stage means individual beginning to come to return with their mortality or inevitable future ना, means बोलते हैं ना, जहां से खत्म होता है वहां से फिर नई शुरुआत होती है, ठीक है। मीन्स एंडिंग से ही न्यू बिगनिंग होती है, राइट। सो एक्सेप्टेंस मीन्स
लास्ट में हम क्या करते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम उस चीज से मूव ऑन कर पाते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेज वेरियस अकॉर्डिंग टू पर्सन सिचुएशन, ओके, different person, different situation are acceptance are different phases, okay. So this phases is marked by withdraw and claim, and this is not a period of happiness and must be disturbing from depression. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the next one is symptoms of normal grief, okay, means क्या क्या इसमें symptoms होंगे. So same feelings है ना, sometimes anger, sometimes anxiety, loneliness है ना, sometimes very helplessness है ना, sorrow, fear, and thought patterns means confusion, memory problem with decision making है ना, feeling with presence are decreased, okay. Physical में क्या होगा, headache होगा, nausea है ना, appetite, tightness है ना, insomnia, पता है ना ये सब क्या है, nausea, appetite, insomnia, पता है ना? Yes, ma'am. So Yes, over ma'am. sensitivity है ना, feeling short of breath, okay, and lack of energy, dry mouth. जब आप किसी ग्रिफ कंडीशन में होंगे या किसी डिप्रेशन में होंगे तो आपको मन करेगा क्या कुछ खाने का, कहीं जाने का, किसी से बात करने का? No, ma'am. No, ma'am. Phases and symptoms है ना, फीलिंग से रिलेटेड सिम्टम्स क्या होंगे, फियर होगा, समटाइम्स एंजाइटी होगा, लोनलीनेस होगा है ना, हेल्पलेस फील होगा, समटाइम्स आपको जो थॉट पैटर्न है वो क्या होंगे, जो थॉट पैटर्न है वो मेमोरी प्रॉब्लम होगा, आप फीलिंग्स प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फिजिकल में क्या होगा, हेडेक होगा, इंसोमिया होगा, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी रहेगा, ड्राई माउथ रहेगा, बिहेवियर क्या होगा, समटाइम्स क्राइंग, समटाइम्स डिस्ट्रैक्टिंग प्रिपिल है ना, ड्रीम्स ऑफ द डिक्रीज मीन्स अब कोई मुझे कुछ आगे के बारे में सोचना ही नहीं है, दिस टाइप ऑफ फीलिंग है ना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेगुलर लाइफ इवेंट मीन्स हो गया यार, तुम लोग जाओ कहीं जाना है तो मुझे नहीं जाना है ना। सो दिस इज अ बिहेवियर सिम्टम्स, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? देन टाइप ऑफ Yes, केयर ma'am. ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट। अब हमको तो ये समझ में आ गया है, वी आर अ नर्स तो वी आर स्टडिंग ना व्हाट इज लॉसेस एंड व्हाट इज ग्रीफ, एंड ग्रीफ से हमको ये भी पता चल गया कि कौन कौन से उसके स्टेजेस है ना, 5 मेन स्टेजेस हैं, कौन कौन से, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, ओके। डिनायल मींस एक्सेप्ट नहीं करना, एंगर मींस अपनी फीलिंग्स को समटाइम्स डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करना, बार्गेनिंग मींस अपने आप को सेल्फ को अंडरस्टूड करवाना सिचुएशन, डिप्रेशन को मींस एक्सेप्टेंस करना, means acceptance before part of phases of है ना, means acceptance but very fear, anxiety for future or any relationship है ना, and acceptance means completely acceptance and move on करना, ठीक है। so this is the 5 stages, okay। अब now type of care of terminal ill patient है ना, means हमको क्या करना है, जो टर्मिनली इल पेशेंट है ना वो कैसे कैसे होते हैं और उनको हमको क्या क्या केयर प्रोवाइड करना है। तो पैलिएटिव केयर होता है, हॉस्पिस केयर होता है, ठीक है। सो पैलिएटिव केयर मींस acute and restorative setting, okay, intervention people who face chronic life threatening illness who are at the end of life need palliative care. Palliative care means focused on the prevention, relief, reduction, okay, soothing symptoms, disease or disorder throughout the entire course of an illness, including care of the dying and bereavement, follow up the family, and primary goal of palliative care is to help patient and families achieve the best possible quality of life, and also it is especially important to advance of chronic illness and appreciate for the patient of any age with a diagnosis and any time of any setting, okay। पैलिएटिव केयर मींस क्या होता है, हमको पता है कि ये सिचुएशन है, मींस कैंसर सिचुएशन है, और हम उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो उसके पेशेंट्स हैं और उनकी फैमिली है उन दोनों को केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उन दोनों को केयर प्रोवाइड करना मतलब जो पेशेंट्स हैं उनको भी हम मेंटली क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, और जो हमारे उसके रिलेटिव्स हैं उनको भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। एंड हॉस्पिस केयर मींस, हॉस्पिस केयर इज अ philosophy and a model for the care of terminally ill patient and their families. Hospice is not a place but rather a patient and family center approaches of care, okay। means इसमें क्या करते हैं, हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और less than 6 to 12 months to live means हम उनको बताते हैं, ठीक है, कि आपके पास क्या है, 2 or 3 months, 6 or 12 months है,
ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, उनको उनके होम में जो केयर प्रोवाइड किया जाता है, जो हॉस्पिटल का जो केयर है वो हम उनको क्या करते हैं, उनके होम में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ हॉस्पिट केयर। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then next one is sign of clinical death. Okay, so clinical death means medical term for secretion of blood circulation and breathing. Clinical death means समझ में आ रहा है ना, means death होना, है ना। and clinical means breathing, है ना, हमारा जो रेगुलर रिदम होता है, ठीक है, जो हमारे हार्ट बीट्स होते हैं वो सबका क्या होना, स्टॉप हो जाना, ठीक है। सो क्लिनिकल डेथ मीन्स मेडिकल टर्म फॉर ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, जितने भी हमारे बॉडी में नेसेसरी ऑर्गन्स हैं उनका सबका स्टॉप हो जाना, ठीक है। सो ये क्या है आपका क्लिनिकल डेथ साइन है, मीन्स जैसे जैसे हमारे पल्सेस स्लो होंगे, हमारे जो हार्ट बीट है वो स्लो होंगे, तो ये सब क्या है, साइन है ना। Yes, ma'am. तो एट द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल डेथ कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट विद इन सेवरल सेकेंड। ओके, सबको पता है जब लास्ट में क्या होता है, जब डेथ होने वाला होता है तो क्या सिचुएशन होती है, राइट। मेजरेबल ब्रेन एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है विद इन 20 to 40 सेकेंड के लिए। अब्सेंस ऑफ पल्स, हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन, पीपल बिकमिंग अ फिक्स्ड, मींस जिस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो हार्ट बीट होते हैं, पल्सेस होते हैं, वो स्लो होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी ब्रेन होती है वो कंप्लीटली 20 to 40 सेकेंड के पहले ही क्या होती है, वो पूरी एक्टिविटी उसकी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। हम जब उससे कुछ बोलते हैं तो वो हमको रिस्पॉन्स करते हैं क्या, नहीं करते हैं, ठीक है। सो क्लिनिकल डेथ मीन्स absence of pulse, heartbeat, respiration, people becoming a fixed and not reacting to light, है ना, सबको पता है ना ये सब। Yes, ma'am. पता है या नहीं पता है, आंसर करो जल्दी। Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फिर नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ अप्रोचिंग डेथ, मीटिंग द नीड ऑफ डाइंग पेशेंट। ओके, समटाइम्स हमको पता होता है कि ये पेशेंट क्या होने वाला है, डाइन होने वाला है, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं हम, ठीक है। सो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मींस रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस ना। लास्ट टाइम पे हमको पता है कि वो व्यक्ति डेथ करने वाला है, तो हम उसको अकेला छोड़ देंगे क्या, No, ma'am. ठीक है। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट ना, लोनलीनेस से हमको उसको रिलीव करना है, फियर एंड डिप्रेशन से हमको रिलीव करना है। हमको पता है कि 6 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, सडनली उसको कभी भी डेथ कंडीशन आ सकती है कैंसर पेशेंट को, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद जब पता है कि वो मुश्किल से 1 वीक का भी हमारे साथ में वो नहीं रहने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसको अकेला तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसको रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस, फियर एंड डिप्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिग्निटी मेंटेन करना है, मेंटेनेंस ऑफ होप। लास्ट टाइम पे पता होने के बाद भी हम उसको ये नहीं बोलते कि हाँ आप मरने वाले हो, ठीक है। उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं होप को। ओके, देन मीटिंग द स्पिरिचुअल नीड्स अकॉर्डिंग टू रिलीजियस। ओके, समटाइम्स क्या होता है, कोई क्रिश्चियन है तो वो अपने जो फादर होते हैं, है ना, जो भी चर्च के फादर होते हैं उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के अकॉर्डिंग, है ना। जो हिंदू होते हैं वो समटाइम्स क्या करते हैं, लास्ट में गीता होता है, तुलसी होता है, वो सब हाथ में पकड़ाते हैं। सो मीटिंग द स्पिरिचुअल नीड मतलब उसकी जो लास्ट विश होती है ना वो हम पूरा करते हैं, ठीक है। देन सिम्पटोमेटिक मैनेजमेंट मींस जो भी उसके सिम्टम्स हमको शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो क्या कर रहा है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, dying patient who is restless and approaching short breath may be given ना। सो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहालेशन, रिमूव हिज डिस्कम्फर्ट मींस ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे, बट जब हमको पता है कि उसका एंड ऑफ लाइफ है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जबरदस्ती उसके मुंह में ऑक्सीजन नहीं डालते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इनहालेशन को रिमूव करते हैं जिसमें उसको ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो, इजिली वो क्या करे, जो उसका लास्ट टाइम है उस पे वो ब्रीथ कर पाए, ठीक है। क्योंकि जितने भी ऑक्सीजन इनहालेशन, ऑक्सीजन थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं उसमें ट्यूब होते हैं, तो वो सब उसको लास्ट टाइम पे क्या करता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इसलिए देन कीप द रूम वेल वेंटिलेट एंड कीप crowd away, okay, and
periodic sectioning is necessary. Then problem associated with eating and drinking, ये सब कुछ क्या है आपके before dying patient ना, ये सारी चीजें जो हैं means वो बहुत कम खाएगा, ठीक है, उसके जो lips हैं वो dry रहेंगे, ये सारी क्या है आपके before dying patient के sign हैं, ठीक है। और फिर last में हम क्या करते हैं, meeting the need of dying patient. Understood everyone? Yes, ma'am. Then management of dying patient, okay, means last में हम क्या management करते हैं, so concern सबको पता होगा, है ना। Then competence means knowledge can be ensuring the warm and concern, communication है ना, जो भी उनके patient से जो भी relatives हैं या उसके mind में जो last wishes हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, या वो अपने किसी relative से बात करना चाहता है तो हम उसको उनसे meet करवाते हैं, ठीक है। Children, if children want to visit the dying patient, so it is generally advisable, okay, they bring consideration of to dying patient, okay। And फैमिली रिसोर्सेज बोथ ऑफ पेशेंट एंड फैमिली मीन्स जो मैंने अभी आप लोग को बताया, लास्ट में हम उनको क्या करते हैं, जो उनके फैमिली होते हैं उनसे उनको मिलने देते हैं, ठीक है। एंड cheerfulness means gentle appropriate senses of humor can be palliative and somewhere anxious damage should be avoided. मीन्स उस टाइम पे हम उसको और किसी चीज को हट करने वाली बातें या हट करने वाला चीज नहीं बोलते, वो जो कुछ भी बोलता है ओके बिल्कुल हम डन करेंगे, इस तरह से हमको उस टाइम पे मैनेजमेंट करना है, ठीक है, समझ में आया। एंड स्पेशली नर्सिंग केयर, सो नर्सिंग केयर क्या रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ द डाइंग पेशेंट, जो भी एंजाइटी है वो नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा, रिलीव करेगा, ठीक है। एजुकेशनल रोल प्ले करेगा, ठीक है। डेवलपिंग सेंस कंट्रोल एंड मतलब वहां पे आप ही रोना चालू नहीं करेंगे, ओके, आप ही अपना क्राइम स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी वहां पे ग्रुप्स होंगे, फैमिली होंगे, उनको आप इनकरेज करेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Nursing care of the dying individual and family. Okay. Then caring for the body after death. Okay. ये सारी सिचुएशन समझ में आई। अब caring for the body after death. Okay. तो after death means after the physician has मतलब लास्ट में जब वो क्या करते हैं, बोल देते हैं ना, प्रॉपरली अनाउंस कर देते हैं कि हाँ डेथ हो गई है, ठीक है। सो फिजिशियन प्रोनाउंस डेथ लीगली डॉक्यूमेंटेड, ओके, द डेथ इज अ मेडिकल रिकॉर्डेड केयर ऑफ द बॉडी यूजुअली परफॉर्म बाय द नर्स। समझ में आया? जब लास्ट में क्या होता है, क्लियर हो जाता है, डॉक्टर अनाउंस करते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है, हाँ जो नर्स होती है, ठीक है, उसका रोल होता है कि वो क्या करे, उसको डॉक्यूमेंटेशन डेथ को क्लियर करे मेडिकल रिकॉर्ड पे, ठीक है। देन ऑटोप्सी कंटेन में बी रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड इफ रिक्वायर्ड। ये ऑटोप्सी मींस मैंने कल बताया था ना आप लोगों को, क्या होता है ऑटोप्सी? Postmortem. Postmortem. अगर हाँ। कोई क्या है मेडिकल कंडीशन में भी फैमिली को सेटिस्फेक्शन नहीं है या फिर कोई क्रिमिनल कंडीशन है, तो ऑटोप्सी अगर रिक्वेस्टेड है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। इफ द पेशेंट इज टू बी एन ऑर्गन डोनर, सो अरेंजमेंट विल बी मेड इमीडिएटली, ओके। मतलब पहले से अगर किसी पेशेंट ने क्या किया है, ऑर्गन डोनेशन का प्लान किया है, जब हमको पता है कि हम टर्मिनली इल हैं और आफ्टर समटाइम्स हम लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने ऑर्गन को डोनेट करने के लिए पहले से प्लान करते हैं, ठीक है। सो इफ द पेशेंट इज टू बी एन ऑर्गन डोनर, सो अरेंजमेंट विल बी मेड इमीडिएटली, ओके। एंड देन फैमिली ऑफन विशेस टू व्यू द बॉडी बिफोर फाइनल प्रिपरेशन आर मेड, दे मेड बी अलाउड, ओके। एंड इफ द पेशेंट हैड एनी वैल्यूएबल, दे आर हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स, ओके। अगर उसने कोई भी क्या किया है, हैवी ज्वेलरी या हैवी कुछ भी, वैसे तो लास्ट टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं है, पर फिर भी कुछ चीजें होती हैं, लाइक कोई गॉड का ही कुछ पहना हुआ है, ठीक है। सो वो हम सब कुछ क्या करते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं उनकी फैमिली को, और क्या करते हैं, जो भी प्रिपरेशन होता है वो हम ऑटोप्सी के लिए हो तो ऑटोप्सी के लिए करते हैं, ऑर्गन डोनेशन के लिए हो तो ऑर्गन डोनेशन के लिए करते हैं, ठीक है। देन हमको जो ये हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर डेथ, है ना, उसका पर्पस क्या है? सो मेक बॉडी लुक एज नेचुरल एंड ब्यूटीफुल एज पॉसिबल। मीन्स हम उसको बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बॉडी तो डेथ हो गई तो उसका केयर करने का कोई मतलब मीनिंगफुल नहीं है, ऐसा कभी नहीं करते, ठीक है। परफॉर्म हिज लास्ट ड्यूटी टेंडरली, मीन्स वो आपके पेशेंट्स के लिए आपके थ्रू लास्ट ड्यूटी होती है, सो बिल्कुल
क्लियरली एंड एक्यूरेटेड आपको उसको केयर प्रोवाइड करना रहता है, ठीक है। प्रोटेक्ट अदर पेशेंट फ्रॉम अनप्लेजेंट साइट एंड साउंड विच कुड फाइटिंग देम एंड देयर केयर फॉर डाइंग पेशेंट, articles required artificial for bath, okay, articles for bath, extra bandages and cotton swab, okay, pad sit and jaw, hands and leg restrictions, and pair gloves, thumb forceps, patient onset of gloves, okay, understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ओके, पोस्टमार्टम मीन्स आपको पता है, ठीक है, क्या होता है। अगर इफ क्रिमिनल कुछ केसेस होते हैं तब फिर हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्ट